Hello students, once again you are welcome here. This is the last video for your chapter History Around Us. Today we are going to read the achievement of the writer Mr. V. Sri Ram, how he achieved a lot of name and fame reputation in his life as he has mentioned here. Now let's see what he says here. He says that my father used to complain that the number of engineering books in my room in the hostel was equal to the number of history books in the room. मिस्टर श्री राम यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके फादर उनसे कंप्लेन किया करते थे, कहते रहते थे कि जितना तुम्हारी इंजीनियरिंग की बुक्स हैं उतने तो जितना तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारे रूम में इंजीनियरिंग की बुक्स है उतने तो बुक्स मेरे हिस्ट्री की हैं जो मेरे रूम में पड़े हुए हैं. एंड ही वुड ऑलवेज से आई डोंट नो व्हाट यू आर स्पेशलाइजिंग इन. और वो भी कहते थे कि उनको खुद नहीं पता चल रहा है कि तुम स्पेशलाइज किस में हो रहे हो, किस में तुम्हारा स्पेशलिटीज हो रहा है. When I went back to Calcutta to work, I had the freedom to look at the building, the GPO, Dalhousie Square, Malik Palace, Indian Museum, Victoria Memorial, the Park Streets Cemetery. And now, after that, he once again returned back to Calcutta to have an attachment with history and its Indian monuments, to the Indian cultural monuments, religious monuments. There, very independently, he was able to move here and there and to see the buildings like that: GPO, Dalhousie Square, Malik's Palace, Indian Museum, Victoria Memorial, and the Park Street Cemetery. This was the matter that shows his freedom, his independence to move in Calcutta freely. It was interesting and absorbing. After that, I moved to Chennai, and this time was very interesting time for him as he was enjoying everything very closely. He observed everything very closely there, and after that, finally he moved to Chennai. Sanjay Subramanian, the singer, and I began a website on South Indian classical music. He says that संजय सुब्रमण्यन जो सिंगर थे और राइटर मिस्टर वी श्री राम दोनों मिलकर के साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्टार्ट किए, वेबसाइट स्टार्ट किए, एंड विच हैड टू बी अपडेटेड एवरी वीक विद आर्टिकल्स. और प्रत्येक वीक आर्टिकल्स के साथ साथ अपनी आर्टिकल से राइटिंग करते थे. उस राइटिंग आर्टिकल के साथ साथ ये लोग वेबसाइट पर उस चीज़ को अपलोड करना, उसको अपडेट करना शुरू कर दिए. Now I used to do the bulk of the writing and found that he couldn't keep the history of Tamil Nadu away from the history of Carnatic music. Mr. V. Sri Ram says that he also used to write on a high scale, on a large scale. बहुत ज़्यादा लिखने के शौकीन थे, बल्क ऑफ राइटिंग लिखते थे, और उनको लगा कि nobody can capable to keep away the history of Tamil Nadu from the Carnatic music. मिस कर्नाटिक म्यूजिक और तमिलनाडु की हिस्ट्री को अगर एक दूसरे से अलग करने की बात आए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था. ऐसा उनको भी रियलाइज उस समय हुआ. I kept referring to the kings, to historical movements, to town temples. Also, he says that in his articles, in his writing, he always referred to the kings, to the historical movements of the kings, to towns and temples. उन राजाओं के मूवमेंट्स को, उनके कृतियों को, उसको हमेशा रेफर करने का काम ये करते रहते थे.
रीडर्स वर इंटरेस्टेड इन दैट कॉलम। और कॉलम कुछ ऐसे होते थे कि उस कॉलम को पढ़ कर के रीडर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे। This inspired me to write about history in a way that would appeal to the people. And the interest of the readers in his column definitely impressed him, also inspired him to write the things according to the appeal of the people। मीन्स लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग अब ये राइट करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि लोगों ने एक अपील किया हो कि इस तरह की राइटिंग सेक्शन को आप मेंशन करिए, दैट इज डेफिनेटली इम्प्रेसिव एंड we are getting interest in it। So he also did the same। Then in 1999, a group of people from the US said that they were coming to attend the music festival in December and that they would like to meet him। Now it was the time of 1919। A group of people from United States informed him that these people are coming from US to attend the music festival in December। जो दिसंबर में म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है उसको अटेंड करने के लिए वे लोग अमेरिका से आ रहे हैं, ऐसा इनको इन्फॉर्मेशन उन लोगों के द्वारा मिला। आई सजेस्टेड दैट वी गो ऑन अ हेरिटेज वॉक ऑफ मैलापुर टू। तो वी श्री राम उनको सजेस्ट किए कि मैलापुर के हेरिटेज वॉक पर वे लोग साथ चल सकते हैं। एंड सेड आई वुड शो देम द हाउसेस एंड टेल देम देयर स्टोरीज एंड हिस्टोरीज। उन्होंने उनसे वादा भी किया कि मैं वहाँ पर उनको पुरानी जो भी हाउसेस बनी हुई हैं, वहाँ की जो इमारतें बनी हुई हैं उनको दिखाऊंगा और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ क्या हैं और उसकी इतिहास क्या है, इन सारी चीज़ों को ही मैं उनको बताऊंगा। ऐसा इन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, उसको रिप्लाई किया। आई अप्रोच द रिनोन्ड म्यूजिशियन। और फिर फाइनली ही अप्रोच द रिनोन्ड म्यूजिशियन, जो वहाँ के सबसे फेमस जो म्यूजिशियन थे उनके पास, वो प्रख्यात म्यूजिशियंस के पास पहुँचे। एंड पेंटर, और जो पेंटर भी थे एस रजम जिनका नाम था। एंड ही इमीडिएटली एग्रीड टू टेल मी ऑल दैट ही न्यू। और जो कुछ भी कुछ वो जानते थे सब कुछ वो उनको बताने के लिए तैयार हो गए। सो इन पोरिंग रेन ही एंड आई वॉकड ऑल राउंड। इसलिए बारिश हो रहा था और उस बारिश के समय में ही वह मिस्टर एस रजम और राइटर जो हैं यहाँ पे वी श्री राम, दोनों लोग उस बारिश में ही वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि इनके पास समय बहुत कम था। टूरिस्टर वहाँ से आने वाले थे, टूरिस्टर्स को विजिट भी कराना था, उनको सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी देना था। इसलिए पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और वहाँ से फाइनली ये मूव कर गए। नाउ द एरिया अंडर वन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला इन लोगों के पास थी, उस एक अम्ब्रेला के नीचे दोनों लोग निकल के आ गए। एंड ही सेड द एरिया अंडर वन अम्ब्रेला एंड ही सेड सो एंड सो लिव्ड हियर। और वन अम्ब्रेला एरिया के अंडर में लोग आ गए और फिर ही सेड, उन्होंने कहा कि सो एंड सो लिव्ड हियर एंड सच हैपेंड देयर। उन्होंने लाइन एक बोला कि सो एंड सो लिव्ड हियर एंड सच हैपेंड देयर। This line was a very valuable line and it indicates a lot of values there। And within half an hour the walk was planned। और इस तरह से आधे घंटे के बाद ही इन लोगों के वॉक का प्लानिंग वहाँ पे हो गया, निकलने का प्लानिंग हो गया। फाइनली अराउंड 45 पीपल केम फॉर द टूर। और इस प्रकार से वहाँ लगभग 45 पीपल टूर पे आए थे। लगभग 45 लोग टूर पर आए थे टूर। एंड इट वाज अ ग्रेट सक्सेस।
और ये काफ़ी एक बड़ी सक्सेस थी उनके लिए, वी श्री राम के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मीट 45 टूरिस्टर्स together and to support them. This is when I decided to do this as often as possible. And he says that this that was the time when he was fully confidently decided to do the same thing, to do all the things that is possible. From then it has continued. और तब से फिर वो कंटिन्यू रखे रह गए, बोथ राइटिंग एंड टॉकिंग एंड रिसर्चिंग। और तभी उसी समय से अपना राइटिंग को, अपने टॉकिंग को, अपने रिसर्चिंग को, इस पूरे उस वर्क को वो कंटिन्यू बना कर लेके चलते रहें। क्यों? क्योंकि दिस वाज द ग्रेट सक्सेस फॉर हिम, एंड आफ्टर दिस सक्सेस ही वाज नाउ कैपेबल टू express his views, to represent him very boldly, very confidently, to handle. He was also able to handle the tourists very closely. So this was all the achievements for him, and now day by day he had achieved a lot of confidence level also. And now some of my books have come out, such as Carnatic Summer, or here he also mentions about his creation, that his book Carnatic Summer in 2004 also published, Devdasi and the Saint 2007, and more recently A Guide to Fort St. George 2007. तो स्टूडेंट्स ये सब मिस्टर वी श्री राम के राइटिंग्स हैं जो आगे चल कर के पब्लिश हुए, जिसमें उनकी इन कलाकृतियों को शो किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो बुक हैं कार्नाटिक समर 2004, देवदासी और सेंट, देवदासी और सेंट 2007, और A Guide to the Saint Fort St. George in 2017, that is very recently published. So finally, with this success, Mr. V. Sri Ram is also famous as a good writer. Therefore, students, this chapter has been also completed, and now on the next day we have to, you can see here, this is the page वी श्री राम एंड अदर्स ऑन हेरिटेज वॉक, बीच में मेंशन हुआ था हेरिटेज वॉक चैप्टर में, आप देख सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। श्री राम एंड अदर्स 44-45 पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, दे आर ऑन अ हेरिटेज वॉक इन कांचीपुरम, तमिलनाडु। दिस इज द प्लेस, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस with all these pilgrims, you can see here. And now finally this chapter has been completed. Okay students, you will revise the chapters, you will also observe the scene of the religious scenes, the beautiful scenes of Indian arts, and see here what a beautiful arts by Indian artist. You can treasure it in your heart. And now finally we have completed it. The next day we will start writing section of this chapter. Okay, till then, goodbye students, goodbye everyone, have a nice day. Okay.